Nimra Naeem, and today I'll be showing you my outline. मुझे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि they want to have a look at how I write my essay outline. तो वो आज मैं आपको दिखाती हूँ. So this topic is about women, violence against women, and indictment of the society. तो इसका थीसिस स्टेटमेंट मैंने कैसे लिखा वो देख लें. Increasing incidence of violence against women in our society is a clear proof of the inability of the state to enforce its writ. Batterers hit women because they can. Rapists violate their honor because they are not scared of law's long hands. So this is the stance that I took, and उसके बाद मैं आगे कैसे लेके चली इस टॉपिक को. सबसे पहले मैंने बैकग्राउंड दिया, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दी, which includes laws and efforts by governments over the years, जिसमें आ जाता है सबसे पहले how Pakistan became part of the Beijing Platform in 1995, setting up of National Commission on the Status of Women. Then in 2005, Criminal Law Amendment Act was passed. उसके बाद the Protection of Women Act 2006, and then Criminal Law Amendment Act 2010. Other than that, मैंने background में Protection Against Harassment of Women at Workplace Act 2010 को भी थोड़ा सा briefly discuss किया. Acid Crime Act 2011 को डिस्कस किया, and then Honor Killing Act 2016 को डिस्कस किया. So this was all about कि कौन सी laws exist करती हैं पाकिस्तान में to prevent violence against women. ठीक है जी, ये background मैंने एक दे दिया. उसके बाद the rest of my essay was based on discussion. तो मेरा जो थीसिस था उसके हिसाब से मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्ट किए. पहला आर्ग्यूमेंट क्या था? The first argument was that on one hand, state devises laws to protect women, and on the other hand, it absolves itself of the responsibility to enforce the same laws. So, laws को as a periodic bandage यूज किया जाता है to soothe the bouts of public rage. Honor Killing Bill post Kandil Baloch murder is an example in this regard. इसके अलावा ज़ैनब अलर्ट बिल आफ्टर ज़ैनब्स रेप एंड मर्डर, लेकिन उनको इन्फोर्स नहीं किया जाता. मैंने एक आर्ग्यूमेंट ये दिया. उसके बाद द नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट वाज द लैक ऑफ resources for law enforcement, जिसमें shortage of female police officers डिस्कस किया. No universal helpline for rape victims का इशू डिस्कस किया. फिर shortage of दारुल अमान्स डिस्कस की. Then I gave my third argument, which was law enforcement personnel lacks the will to enforce the laws. So basically the entire department reeks of patriarchy, and action is taken only against cases surrounded with a lot of hype. जैसे आपको पता है कि मोटरवे रेप इंसिडेंट था या ज़ैनब का कसूर वाला इंसिडेंट था, तो बहुत ज़्यादा हाइप थी तो उन्होंने एक्शन लिया. और फिर ऐसे केसेस में वो स्मार्ट टैक्टिक्स भी इस्तेमाल करते हैं और फोरेंसिक एनालिसिस भी यूज़ करते हैं. For example, geofencing was used to track perpetrators of motorway rape case, and forensic labs are underutilized. जब हाइप ना हो केस की, लेकिन हाइप अगर हो, कोई फेमस हो जाए केस लाइक द कसूर रेप इंसिडेंट, तो उसमें भी forensic labs were utilized और saliva swabs of the entire male population were collected. फिर मेरा फोर्थ आर्ग्यूमेंट क्या था? एपिथेटिक एंड कैलस एटीट्यूड ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, जिसमें आ जाता है विक्टिम ब्लेमिंग. जैसे कि सीसीपीओ के रिमार्क्स इसमें मैंने मेंशन कर दिए आफ्टर द मोटरवे रेप इंसिडेंट. फिर टू फिंगर्स टेस्ट एंड द लैक ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन. इसमें केस ऑफ पुलिस बीटिंग विमेन मैंने डिस्कस किया.
Then the fifth argument was police colluding with the perpetrators of the crime. इसमें case of rape in Multan, जिसमें victim attempted self-immolation as FIR was not registered. ये वाला केस डिस्कस किया. फिर पुलिस becomes the perpetrator, which was इसमें फिर वो केस आ गया था जो थिएटर एक्टर्स का रेप किया था पुलिस ने. And then I came to my counter arguments. Public disowns laws and uses alternate justice system. अब ये तो सबको पता है कि alternate justice systems जिरगा पंचायत हमारे रूरल एरियाज में एग्जिस्ट करती हैं. और इसमें जो केस मैंने मेंशन किया, इट वाज अ गर्ल इन द रिवर, द प्राइस ऑफ फॉरगिवनेस. इसके अलावा सेकंड आर्ग्यूमेंट ये था कि नॉट ऑल पुलिस ऑफिसर्स आर अनसिंपैथेटिक एंड विम्सिकल. इसमें कई मिसालें हैं of police officers who have given up their lives for their country in the line of duty. तो वो मिसालें मैंने दी to support my argument. And then it is unjust to declare the entire criminal justice system to be in collusion with the criminals. ठीक है, ये तो बड़ी अजीब सी और स्वीपिंग जनरलाइजेशन होगी कि अगर आप पूरे के पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को कह दें कि ये गलत है. ठीक है जी. फिर मैं आ गई अपनी इन्फॉर्म्ड जजमेंट पे, which was lack of women in law making and implementation process is the main reason behind the dismal state of violence in the country. तो क्योंकि लॉ मेकिंग में इतनी औरतें नहीं हैं, इस वजह से देयर इज वायलेंस इन द कंट्री. ये मैंने आर्ग्यूमेंट दिया. और देखें, लॉ मेकिंग प्रोसेस में अगर औरतें होंगी तो वो फेवरेबल लॉज पास करेंगी. जो एग्जिस्टिंग वीकनेसेस हैं एग्जिस्टिंग लॉज में वो भी खत्म होंगी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आसान होगी. सो दिस इज व्हाट आई ट्राई टू डिस्कस इन द इन्फॉर्म्ड जजमेंट. इस आर्ग्यूमेंट को मैंने कैसे सपोर्ट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज इन 72 years. ये उस वक्त के फिगर्स हैं 2021 के. तो अब के फिगर्स आप देख सकते हैं. ओनली 6 out of 113 फीमेल जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, 6 out of 198 members of 7 bar councils are females, and 2% of 88536 are members of Sindh police force are females. मतलब 2% है सिर्फ फीमेल मेंबर्स ऑफ द सिंध पुलिस फोर्स. फिर मैंने बात की काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी परपेचुएट्स पेट्रियार्की बाय इन्फ्लुएंसिंग लॉज. उसमें कुछ लॉज की मिसालें दी, लाइक हुदूद ऑर्डिनेंस, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन एक्ट, किसास एंड दियत प्रोविजंस ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड. फिर क्लर्जीज बैकलैश अगेंस्ट विमेन्स प्रोटेक्शन बिल 2016. DNA should not be used as evidence in rape cases. Instead, four male अच्छा DNA नहीं इस्तेमाल किया जाता और 4 मेल विटनेसेस रिक्वायर करते हैं. तो इस चीज को क्रिटिसाइज किया. एंड देन आई केम टू द कंक्लूजन, inculcation of women in law making and enforcement, gender sensitization to be made part of police training. ठीक है जी. So this is how I wrote my outline. बहुत ज़्यादा एस्पायरेंट्स मुझे कह रहे थे कि मैम अपनी आउटलाइन शेयर करें. सो हेयर इट इज़. आप लोग देख सकते हैं और इससे सीख सकते हैं. इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन and subscribe to my channel.